Hello guys, today I am going to teach you chapter 1 of Geography class 9, India size and location. India is one of the ancient civilizations in the world. It has achieved multifaceted socio-economic progress. During the last 5 decades, it has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. India has also contributed significantly to the making of world history. भारत जो है वो विश्व की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है और पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। बहुमुखी यानी चारों तरफ से, है ना, उन्नति हर क्षेत्र में, हर आयाम में तरक्की की है। सामाजिक, आर्थिक, कृषि, उद्योग, तकनीकी और जितने भी आर्थिक विकास हैं सब में अद्भुत प्रगति प्राप्त हुई है भारत को। और इसलिए भारत जो है, भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। India is a vast country lying entirely in the northern hemisphere. The mainland extends between latitude 8 degree N and 37 degree 6 N and longitude 68.7 E and 97.25 E. The Tropic of Cancer 23 degree 30 N divides the country into almost two equal parts. To the southeast and southwest of the mainland lie the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. इंडिया यानी कि भारत जो है ये बहुत बड़ा देश है और इसका जो ये जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 1.1 को नीचे देखिए। इसका जो मुख्य भाग है 8.4 उत्तर से और 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश और 68.7 पूर्व से 97.27 पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा जो है वो 23 डिग्री 30 उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। इसका जो मुख्य भूभाग है वो दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में है लक्षद्वीप समूह और अरब सागर में स्थित है। ये अपने एटलस को देखो और बोल रहा है इसको फाइंड आउट कीजिए, इन द्वीप समूहों का विस्तार क्या है वो ज्ञात कीजिए। Size: the land mass of India has an area of 3.28 million square kilometer. India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world. From figure 1.2, it is clear that India is the seventh largest country of the world. India has a land boundary of about 15,200 kilometers and the total length of the coastline of the mainland, including Andaman and Nicobar and Lakshadweep, is 7,516.6 किलोमीटर। अब हम इसके आकार की बात करते हैं। भारत के भूभाग का, इसके लैंड मास का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसका जो क्षेत्रफल है भारत का वो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। चित्र 1.2 को देखिए। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और भारत की जो लैंड मास है, इसका स्थल सीमा वो 15,200 किलोमीटर है और समुद्री सीमा रेखा जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर का है। is bounded by the Yangful Mountains in the northwest, north and northeast. South of about 22 degree north latitude, it begins to taper and extends towards the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on its east. Look at figure 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. Despite this fact, the east-west extent appears to be similar than the
north-south extent. From Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a time lag of 2 hours, hence time along the standard meridian of India passing through Mirzapur is taken as the standard time for the whole country. The latitudinal extent influence the duration of day and night as the moves from south to north. जो भारत का उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी जो सीमा है वो पूरी तरह से नए यंग पर्वतों से घिरा हुआ है और इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता चला गया है और इसके पश्चिम में संकरा यानी पतला, इसके पश्चिम में अरब सागर है और पूरब में बंगाल की खाड़ी स्थित है। चित्र 1.3 को देखिए और उसमें अक्षांश और देशांतर का जो विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री का है और फिर भी पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है वो उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम लगता है क्योंकि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः ये जो 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक में माना गया है जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का जो प्रभाव है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है और दिन और रात जो है वो इसको इन्फ्लुएंस करता है। India and the world. The Indian landmass has a center location between the East and the West Asia. India is southward extension of the Asian continent. The trans-Indian Ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location of India. Note that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia. भारतीय भूखंड जो है वो एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के बीच में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है और हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देश और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है वो भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। And Europe from the western coast and with southeast and East Asia from the eastern coast. No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of the ocean after it. दक्षिण का जो पठार है वो हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी किनारों के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश को तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। India's contact with the world have continued through ages, but her relationship through the land routes are much older than her maritime contact. The various passages across the mountains in north have provided passage to the ancient travelers, while the oceans restricted such interaction for a long time. भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ संपर्क बहुत पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जल मार्ग के अलावा की अपेक्षा भूभाग से होकर था और उत्तरी पर्वतों के दरों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आया करते थे और आए थे, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। तब की बात है, तब भी लोग यहाँ आया करते थे। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. The ideas of Upanishad and the Ramayana, the stories of Panchatantra, the Indian numerals, and the decimal system thus could reach many parts of the world.
The species Muslims, the spices muslin and other merchandise were taken from India to the different countries. On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural styles of dome and minarets from West Asia can be seen in different parts of our country. इन्हीं रास्तों से प्राचीन समय में विचारों और वस्तुओं का हमेशा आदान प्रदान होता रहता था। भारत का जो पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया तथा पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक हम अद्भुत संपर्क रहा है और इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, हमारे रामायण और पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली, है ना, ये सब संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सका। मसाले, मलमल आदि कपड़े, व्यापार के अन्य सामान भारत से बहुत सारे देशों में बहुत सारे देशों में ले जाया गया या ले जाते थे लोग। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला जो है और पश्चिमी एशिया की जो वास्तुकला है, उसके जो प्रतीक मीनार और गुंबद का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में भी देखा गया। कुछ मतलब हमारे विचार, हमारे धर्म ग्रंथ और हमारा जो दशमलव प्रणाली है, पंचतंत्र की कहानियाँ है ना, ये सब बाहर गया। तो बाहर की भी जो स्थापत्य कला की नमूने हैं, वास्तुकला के, मीनारों के, गुंबदों के, उसका प्रभाव भी हमारे देश को प्रभावित किया। India occupies an important strategic position in South Asia. India has 28 states and 8 union territories. India shares its land boundaries within Pakistan and Afghanistan in the northwest, China, Nepal and Bhutan in the north, and Myanmar and Bangladesh in the east. Our southern neighbors across the sea consist of the two island countries. जो भारत के पड़ोसी देश हैं, भारत का दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं और भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, और उत्तर में चीन और नेपाल और भूटान के साथ, और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। मालदीव, श्रीलंका is separated from India by a narrow channel of sea formed by the Strait and the Gulf of Mannar, while Maldives Islands are situated to the south of the Lakshadweep Island. India has had a strong geographical and historical links with her neighbors. Look at the physical map of Asia in your atlas and note how India stands apart from the rest of Asia. दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं, और भारत और श्रीलंका के बीच में छोटी समुद्री रास्ता पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में है और अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र को देखो जो दिया गया है, भारत कैसे अलग दिखाई देता है। So this is the end of chapter 1. Thank you for joining me. Please like and subscribe my channel. Thank you all.